Can you hear us? Can you hear us? Online team? Yes. Okay. Please. आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. We are not hearing Ashish. Heavenly Father, we thank you for hearing longings of our heart. Not yet. Hello. 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 Can you hear now? Please. Please. Better. Ashish? Hello. Can you hear Ashish? Better. Hello. Hello. Mic volume. Mic volume on that. Can you hear? Yes. Heavenly Father, we thank you for your gracious intervention in our lives to gather as a church this morning, and we confess that during this period there were questions in our heart and doubts, and we were people who swayed by what surrounded us. But your constancy, your love, and your grace abounded, and you heard our cry, our plea, and you granted us a favorable environment to be gathered in this manner. And as we look to your word this morning, Father, it's a humble plea that you will speak to our heart, that the word would saturate us, that your Spirit, O Lord, would move in a manner where your word is what we would pine for, what we would long for. We ask this in Jesus' precious name. Amen. Dear church, I really wanted to continue with book of Genesis, but this week was pretty bad.
in terms of time management. उत्पत्ति की किताब से जो हम सीख रहे हैं उसको मैं आगे रखना चाह रहा था, परंतु कुछ कारणवश मैं वो कर नहीं पाया. But this also became an occasion when I went back searching for the sermon that we started when we started our. Okay, if I am emotional, forgive me. When we started the online sessions. मैं कुछ जो हम लोग ऑनलाइन सेशन जो कर रहे थे उसके बारे में कि उस समय पे मैंने क्या बोला था So उसको देखने के लिए हमने कोशिश किया This था. was a sermon that I preached in the month of March 2020 when we went online with our church. मार्च 2020 में जब हम लोग पहली बार ऑनलाइन हो गए थे, उस समय पर मैंने ये इस भजन 46 से कुछ बातों को रखा था. The title was Who is our security? सवाल उस समय पे हमने ये पूछा था कि हम लोग का संरक्षण करने वाला कौन है. This was a sermon based on Psalm 46. और हम लोग का उस समय पर जो मैंने जो बोला था वो भजन 46 से था. And the question of security, one's security is as good as the strength of the security अगर itself. किसी को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है तो वो सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की शक्ति को भी दर्शाती है. Now this psalm lies down in the backdrop of what happened during the reign of King Hezekiah. और हेzekiah जो राजा था उस समय उसके राज में क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पर इस वचन में लिखा We know गया that है. famous story when Hezekiah, under his reign, the Assyrian king surrounded the city of Jerusalem after having captured the other cities in Judea, and he surrounded and besieged the city with probably over 100,000 of forces. And Hezekiah ran to the temple, tore his clothes, prayed, and that night the angel struck down the enemy, leaving none alive. अजरिया के जो राजा थे उस समय पर उन्होंने पूरा जो शहर था उसके चारों तरफ करीब करीब 100,000 उनकी जो सैनिकों से पूरी तरह उसको घेर लिया था. Now- हेजेकिया जो राजा था उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वो दौड़कर परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन सैनिकों को तहस नहस कर So when दिया. we talk about God as our security, we're going to talk about Him as the first point, security. 2, we're going to talk about knowing His stability. And 3, we're going to talk about knowing His intimacy. और हम लोग 3 चीजों को आज यहाँ पे देखेंगे. पहली चीज ये है कि परमेश्वर हमारे लिए एक सुरक्षा के रूप में या हमारा सुरक्षा परमेश्वर में हम देखते हैं. दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में स्थिरता को लाता है. और तीसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है. So would you turn your Bibles with me to Psalm 46? And we did not read it in our scripture reading, so let's read that this morning. आइए हम लोग भजन 46 को अपने 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 बाइबलों में खोलें और हम लोग सुबह उसको पढ़ नहीं पाए और अभी हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. This is Psalm by the sons of Korah according to the Alma, a song. Elohim is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives away, though the mountains be moved into the heart of the sea, though the waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Verse 4, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her, and she shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, and the earth melts. Yahweh of hosts is with us. The God, the Elohim of Jacob, is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolation on the earth. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow, shatters the spear. He burns the chariots with fire. Verse 10. Be still and know that I am Elohim. I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob, Elohim of Jacob, is our fortress. You see, the difference between an unbeliever and a believer is this, that the unbeliever has no place to hide, whereas a believer has a place to hide. अगर हमसे कोई पूछता है कि एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि एक अविश्वासी को कहीं भी छुपने की
कोई जगह नहीं है, कहीं कोई शरण स्थान नहीं है। My dear church, you and I have God as our fortress, our refuge, our security. We have a place to hide in times of trouble. और हमारे पास वो परमेश्वर है जो हमारा शरण स्थान बनकर हमारे साथ रहता है। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो वो आपका शरण स्थान बन सकता है। So first thing that we want to note this morning is know his security, verses 1 to 3. पहली सी तीसरी आयत में हम लोग जो सीखना चाहते हैं वो ये है कि आप उसकी सुरक्षा को देखें। God is our refuge, says the psalmist. यहाँ पे भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान You है। see, today the world is all about security. You need financial security, you need physical security, you need online security, security. It's all about security. अगर आप अपने अभी कहीं पे भी देखें तो सुरक्षा कवच, ये कवच, उसी के बारे में आप हमेशा देख सकते हैं। आर्थिक रूप से आपको सुरक्षा चाहिए या आपको सुरक्षित होना है, इसी बारे में हम लोग हर जगह देखते हैं। None of these securities are secure. They fail. They're bound to fail. परंतु ये जो कोई भी संसारिक सुरक्षा जो है वो बिल्कुल क्षणभंगुर है, वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है, वो विफल हो जाती है। The security they provide is not sufficient. That's the failure. कहने का ये मतलब है कि जो सुरक्षा जो ये चीजें हमको देती हैं वो काफी नहीं है, वो कहीं ना कहीं विफल हो So जाती हैं। when the psalmist writes about this God as his security, he's saying that this security is sufficient. He's talking about the sufficiency of God who he believes in. परंतु यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है कि जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो कहता है कि ये परमेश्वर कभी विफल नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा अटल रहेगा। Look at your Bibles and see how he starts the psalm. He starts it with Elohim, God. और यहाँ पर वो परमेश्वर या एलोहीम जो मूल भाषा में जो इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द के साथ इस भजन को शुरुआत करता है। God is his refuge and his strength. परमेश्वर उसका बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला Now, सहायक। why God and why not Yahweh in the first word? यहाँ पे एलोहीम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, यहाँ पे यहवे शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया Where है? do you find the word Elohim? आप एलोहीम को कहां पर देखते हैं? अगर आपको अभी आप पढ़ रहे होंगे तो एलोहीम शब्द कहां पर इस्तेमाल किया गया You है? read the word God or Elohim in the first page of the Bible. आप एलोहीम को वचन के पहले पन्ने में, पहले अध्याय में आप वहां पर In देखते the हैं। beginning, God. वहां पर लिखा गया है आदि में परमेश्वर ने, In other words, in the beginning, Elohim created heavens and earth. और उसका कहने का मतलब है कि आदि में परमेश्वर ने इस संसार की रचना And की। those beautiful, powerful words assume that God existed before anything was created. और इस शब्दों का मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ भी संसार में होने से पहले, या हम जिस चीज को समझ सकते हैं उससे पहले परमेश्वर उपस्थित था। Bible begins with the sovereignty of God, and that's a fabulous truth for you and I to imbibe this morning. प्रिय अजीजों, आज सुबह जब हम यहाँ पे बैठे हैं, जो बहुत बड़ी सच्चाई जो हमें समझनी वो ये है कि परमेश्वर सर्वभौम है। So what you see, what you don't see, what you are, who you are, everything finds its source, its beginning in God. आप जो नहीं देख सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो आप हैं, जो आप नहीं हैं, वो सब कुछ परमेश्वर में वो मिलता है। Therefore we are his. इसलिए हम उसके हैं। Now Isaiah 42 verse 5. I don't have the PPT, so sorry for all the onliners. You turn to Isaiah 42 verse 5. You have this personal God, and this is what it says. Thus says God, the Lord, who created heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk on it. परमेश्वर जो आकाश का सृजनहार और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है। What should capture our attention this morning is the personal nature of this sovereign God. प्रिय अजीजों, आज की सुबह अगर आपके दिमाग में अगर आपको कुछ भी चीज समझनी हो, वो ये समझनी है कि ये जो सर्वभौम परमेश्वर है वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। You see, you need to understand that his sovereignty is not a mechanical feature of who he is. His sovereignty is his personal aspect, which is
is with you, which deals with you on a daily basis. ये चीज़ जब हम परमेश्वर के बारे में समझते हैं तो ये जरूरी समझना है कि वो सर्वभौम परमेश्वर को जब हम सोचते हैं वो उसकी कोई ऐसी एक खूबी नहीं है जो कि एक अपने आप से या वो अपने आप में पाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है. Therefore, his rule over us is a loving rule, not a mechanical rule, not an autocratic rule. His rule is characterized by loving. So whatever comes into our life, it is under his sovereign care, and that is because he is a personal God. प्रिय अजीजों, इसलिए जब परमेश्वर हम पर अधिकार करता है तो वो अधिकार जो है वो प्रेम से परिपूर्ण एक अधिकार होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि जो सार्वभौमता जो है उसमें हम परमेश्वर की उस चरित्र को दे सकते हैं कि वो उसी समय पर व्यक्तिगत भी है. The personal pronouns used here, mine, our. God is my refuge and strength. God is our refuge and strength. This signifies the sense of belonging. Who is this God for you this morning? Do you call him my God? Do we call him our God? Is there a sense of belonging to this God? For he is a personal God. प्रिय चीजों, यहाँ पर जब 46 भजन में भजनकार ये नहीं कहता है कि परमेश्वर शरण स्थान है, परंतु यहाँ पर 46 आयत में 46वीं भजन में वो कहता है परमेश्वर हमारा या मेरा शरण स्थान है. जब आप यहां पर बैठे हैं तो सवाल यह है कि क्या आपके लिए यह व्यक्तिगत संबंध आप परमेश्वर के साथ है, या आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है. I preached this in the month of March in 2020. This is October 2021. Can we say our God is our refuge and our strength? प्रिय अजीजों, मार्च 2020 में मैंने इसको आपके सामने पेश किया था. तब मैंने ये सवाल पूछा था, परंतु आज अक्टूबर हो चुका है, 2021 हो चुका है, कि सवाल फिर भी हमारे सामने ये आता है, क्या आज आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है? The psalmist says God is an ever present help in trouble. Verse 1. Ever present help. और यहां पर भजन लिखने वाला पहली आयत में कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. You see, when God created woman, he said a fit helper, someone who complements the man. But here God says, I am a helper to man, but I am an exceeding helper. Ati sehaj, exceeding helper to man. यहां पर उस आयत को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक सहायक के रूप पर परमेश्वर अपने आप को अपने चरित्र को नहीं दिखाता. यहां पे लिखा गया है अति सहज या अत्यात्यात से परमेश्वर हमारा सहायक Now है. Psalmist is looking back at the history of Israel. He's looking at Exodus. He's looking at the formation of the nation state of Israel. He's looking at the rule of David. So he has history to back his claim and say God is a well-proven helper for us. प्रिय अजीजों, जब वचन लिखने वाला इसको लिख रहा है तो वो सिर्फ ऐसे ही काल्पनिक रूप से नहीं लिख रहा है. वो उस चरित्र को देखता है, उस इतिहास को देखता है जो उसके साथ घटा हुआ है, जो उस यहूदियों के साथ घटा हुआ है, उत्पत्ति को देखता है, उस यात्रा को सोचता है और कहता है कि सचमुच में परमेश्वर अति सहज है. Look at दिक्कत के समय पर. Look at those two words, refuge and strength. One is defensive, the other one is offensive. अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक शरण स्थान के बारे में लिखा गया है और दूसरा वो बल के बारे में यहाँ पर बताया They गया have है. been defended and they have been protected. यहाँ पर पहले चीज उनको सुरक्षित किया गया है और उनको दूसरी चीज उनको संरक्षित किया गया है. इसको हम यहाँ पर इन आयतों में देख What सकते is हैं. Psalmist saying? He's saying that we have experienced an all-sufficient God. We have experienced the security, no-fail security of God. यहाँ पर भजन लिखने वाला क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि हम एक उस परमेश्वर को जानते हैं जो हर समय पर हमारी संरक्षण करता है या हमें सुरक्षित रखता है. So what is the response to this great experience of this great all-sufficient God? We will not fear. That's what Psalmist says if you read verse 2 of 46. He says, therefore we will not fear. तो अगर हम इस महान परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो भजन लिखने वाला का प्रतिक्रिया क्या है? वो यहां पर दूसरे आयत में कहता है इस कारण
हम कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए. Now, this is not merely a personal experience of the psalmist, it is his communal experience. He experiences this in the community of a worshipping people, and they say, "We will not fear." प्रिय जीसो, ये जो गीत है वो सब लोग वहां पर जो समूह है वो एक साथ मिलकर इस गीत को गा रही है और वो साथ में मिलकर कह रहे हैं कि इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए. What's our experience as a community? प्रिय जीसो, आज समूह के रूप में हमारा क्या We अनुभव है? gather back probably after almost a year and a half. हम 1.5 साल बाद हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत रूप में इकट्ठा हुए What is हैं. our testimony? आज हमारा क्या गवाही क्या है? Is there the sense of belonging? Is there a sense of experiencing God as a community? Or have we lost that just because we were not allowed to meet for over a year and a half? क्या आज हम लोग समूह के रूप में इस बात को कह सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर हमारा संरक्षण करने वाला है? क्या हम समूह में इस बात को कह सकते हैं कि वो हमारा बल है और हमारा सहायक है? It's not just the virus, it's the political environment which is in opposition to the church in India. And are we able to stand together and say that God is my ever-present help in trouble, and therefore we will not fear anything? प्रिय अजीजों, आज की जो राजनीतिक जो शक्तियां हैं हमारे खिलाफ है या परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ है, परंतु क्या हम उस समय पर इस बात को कह सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है और संकट में अति सहज सहायक The है? psalmist has a strong imagination. He's imagining everything cataclysmic. Everything is chaotic. The mountains are landing in the sea. I mean, that's not where the mountains should be, right? But he imagines the chaos around him as mountains in the sea. यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि भजन लिखने वाला छोटी चीजों को कह रहा है, जो शाही में होके कि बाहर गए तो गाड़ी लड़ गई या वहां गए तो नीचे गिर गए, ऐसी छोटी समस्याओं के बारे में नहीं कह रहा है. वो बिल्कुल काल्पनिक रूप से सबसे उच्च कोटि की बातों को कह रहा है. कहता है कि भाई अगर पृथ्वी उलट जाए और अगर पहाड़ समुद्र में गिर जाए तब भी मैं या हम नहीं भयभीत होंगे. It's chaotic. The environment that psalmist, this community is in, is chaotic. ऐसी जो बिल्कुल संभ्रमता से भरी हुई एक समूह को हम देख सकते हैं. They need help. और उनको सहायता की बहुत They जरूरत है. can't help themselves. वो अपने आप अपनी सुरक्षा या अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं. The saying that God helps who help themselves is an absolutely absurdity. It makes no meaning, no sense. जो अभी कहावत जो है हम लोग कहीं कहीं अपने कारों में लिख के भी रखते हैं कि जिनको जो अपनी खुद की सहायता करते हैं उनकी परमेश्वर सहायता करता है. अगर उसको सच रूप में बोला जाए तो वो बिल्कुल गलत बात है, उसमें कोई सच्चाई नहीं This है. help is not the help at home. This help is not to make life easier. यहां पर जो सहायता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप घर पे कोई काम आपका काम बांटता है, वो सहायता नहीं है. This is a help without which life is impossible to live. प्रिय जीसो, ये वो सहायता है जिसके बिना आप अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं. The chaos in verse 2 and 3 resembles the chaos in chapter 1 of book of Genesis verse 2. दूसरी और तीसरी आयत में यहाँ पर जो पागलपन या जो संभ्रमता को आप देख सकते हैं, उसी संभ्रमता को आप उत्पत्ति पहले अध्याय में देखते हैं. But as you find the presence of God bringing order in the creation in chapter 1 of book of Genesis, the psalmist and the community of God living there find calmness in Yahweh, in Elohim. पहले अध्याय में जिस प्रकार उस विलीनता को दिखाई गई है, वहां पर संभ्रमता को दिखाई गई है और वहां पे परमेश्वर सृष्टि करता है, उसको सोचते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भजनकार कहता है कि ये संभ्रमता भी खत्म हो जाएगी. God was sufficient for creation and God is sufficient for their security as a community. वो ये कहना चाहता है कि जो परमेश्वर सृष्टि में काफी था, जो वो सृष्टि में उस संभ्रमता को, विलीनता को खत्म कर सकता है, वो आज हमारे लिए काफी है. My dear church, God worshipping community remains unmoved, and I want us to question our own identity as a community. Have we moved? Are we shaken? Has our faith faltered? Are we backsliding? Are there problems that is uncovered, left uncovered, left covered? Those are the questions that we must ask this morning. प्रिय अजीजों, आज जब हम यहाँ पर बहुत समय के बाद
व्यक्तिगत रूप में बैठे हैं तो ये सवाल जरूरी है कि क्या आज ऐसी दिक्कतें हैं हमारे जीवनों में जिसको हमने छुआ नहीं है या इसको हम छुपा के रख रहे हैं, ऐसी मुसीबतें हैं जिसके बारे में हम बताना नहीं चाहते हैं या उसको छुपा के रखना चाहते हैं। Now, when you come to the second point this morning, you experience not just a security, you experience, in experiencing a security, you experience a stability in your life, verses 4 to 7. आप जब चौथी आयत से सातवीं आयत को देखते हैं तो वहां पे जो स्थिरता जो है उसके बारे में हमारे सामने कहानी आती है। So the Edenic pictures continue from verses, as I was referring to them in chapter Psalm 46, 2 and 3. You see the Edenic pictures that happened in the book of Genesis, and verses 4, 7 continues with that imagery, and it's moving from raging to calmness. और चौथी और चार और सात आयतों के बीच में हम आदम के बगीचे की जो चित्रीकरण को यहाँ पर फिर से देख रहे हैं। पहली और तीसरी आयत में हमने उस चित्रीकरण को देखा, आदम बगीचे के चित्रीकरण को देखा, यहाँ पर भी हम उसी चित्रीकरण को देख रहे हैं, परंतु यहाँ पर वो जो समधर्मता जो थी, जो विलीनता जो थी वहां सर, और यहाँ पर एक आराम के एक अनुभव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। From a state of being shaken up by the mountains trembling and falling into the sea, from that scene to a sense of stability. यहाँ पर जब उस चित्रीकरण को देखते हैं कि पर्वत पृथ्वी जो है उलट जाएगी या पहाड़ जो है समुद्र में गिर जाएंगे, वहां से यहाँ पर हम लोग एक आराम के एक अनुभव को यहाँ पर देखते हैं। Stability brings joy in the hour of crisis. Stability in God brings joy in the hour of crisis. अगर आप परमेश्वर में स्थिर हैं तो आपके जीवन में कोई सी भी विषम परिस्थितियां कैसे भी हो, आप आराम के जीवन को जिएंगे। Please note in verse 4, it says, there is a river whose streams make glad the city of God. There is a river in the city of God. The ancient cities were built by the riverside because without them existence was impossible. प्राचीन काल के जो शहर जो होते थे वो नदियों के तटों पे बनाए जाते थे, क्योंकि अगर नदी नहीं होती थी तो वो जीवन वहां पर नामुमकिन होता था। And if there were enemy nations coming, they would block them from getting any water into the city, thus forcing surrender of the city. और जो शत्रु जन थे उस समय पर जब वो आक्रमण करने से पहले वो वहां का जो नदी को बांध कर बंद कर देते थे, जिससे कि शहर के पास और कोई मौका ना हो वो आकर अपने आप को उनके सामने अर्पण कर दें। For the city of Jerusalem there was no river. पर कोई नदी तो नहीं बह रही थी। But what they had was springs outside the city wall where they had to get the water from there into the city. और वहां पर शहर के बाहर वहां पे कुछ ऐसे छोटे-छोटे पानी की नालियां थे, वहां से वो पानी को लेके आते थे। Now during the time of Hezekiah they built a conduit, a aqueduct to bring water from these springs. This conduit was hidden from the enemy, so the water came even if the enemy surrounded the city. हिजकिय्याह के समय पर राजा ने वहां पर एक प्रणाली को उत्पन्न किया जहां से पानी वो छुपा के एक टनल की तरह या गुफा की तरह बनाया, जिससे कि बाहर का जो पानी है वो शहर में आ सके और शत्रु जो है वो उस गुफा, क्योंकि वो गुफा के रूप में था, उसको देख भी ना पाए। Now probably the psalmist is referring to that channel inside, the water flowing through that channel into the city of Jerusalem unobstructed, even if the enemy had besieged the city. I don't know what it is, but I'm very sure he is surely keeping the Edenic picture in mind. यहाँ पर शायद उस गुफा के बारे में जहां से पानी बाहर से पानी जो आता था उसके बारे में शायद यहाँ पर भजन लिखने वाला कह रहा है। मुझे पता नहीं आखिर में क्या उसके चित्रीकरण को अपने मन में रख रहा In है। chapter 2 of book of Genesis it says that Eden had 4 river systems. और आदम बगीचे में दूसरे अध्याय उत्पत्ति में वहां पर लिखा गया है कि वहां पर 4 ऐसी नदियां थीं। That caused the flourishing of the garden, that brought life and delight in Eden. और हम लोग वहां पर इस बात को देखते हैं, लिखा गया है कि वो वहां पर जीवन में खुशहाली या उस आदम बगीचे में खुशहाली लेके आई या परिपूर्णता को लेके आई। It brought life into that garden. और उस बगीचे में वो जीवन को उत्पन्न किया। It indicates that life remains joyful because of the reasons inside, not outside. और क्योंकि वो नदियां थी इसलिए वहां के वो खुशियां को लेके आती थी, वो बाहर से नहीं परंतु अंदर से वो खुशियों को लेके आती थी। The sense of vitality, the sense of life and stability that Jerusalem enjoyed came from within, came from the fact that it was a protected city and God was over it.
और यहाँ पर यरूशलेम के जीवन के बारे में जो खुशियों के बारे में लिखा गया है वो ये है क्योंकि वो अंदरूनी थी और परमेश्वर उसका संरक्षण करने वाला था या उसको सुरक्षा देने वाला I था। want you to notice, observe verse 5, and it's a fantastic verse to underline. और 5वीं आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो और बहुत ही सुंदर एक आयत है, अगर आप उसको अपने Why बाइबलों is में there a calmness? सवाल ये उठता है कि ये आराम का जो जीवन है यहाँ वो कैसे हो सकता है। God is in midst of her. और क्योंकि यहाँ पर लिखा गया परमेश्वर उनके मध्य में है, She shall not be moved. और वो कभी भी वो हटेगा नहीं। The abiding presence of God is their stability. प्रिय जीसो, परमेश्वर उस नगर के बीच में है और इसलिए उनके जीवन में स्थिरता The है। situation outside is raging. और वो बाहर की जो परिस्थिति, शत्रु जो लोग हैं, सैनिक हैं, वहां पर बहुत बुरा हाल है। It's like mountains falling into the heart of the sea, but inside the city there is calmness. बाहर दुनिया उलट चुकी है, बाहर पहाड़ पानी में, नदियों में गिर रहे हैं, समुद्र में गिर रहे हैं, परंतु अंदर बिल्कुल आराम है। Some experience the presence of God. The city of Jerusalem experiences the presence of God. यहाँ पर यरूशलेम की जो नगरी है, यरूशलेम के जो लोग हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति को देख पाते हैं। Jesus, when he was sitting by the well in Samaria, the woman who came by, and Jesus said, I will give you the living water, of which you drink, you will thirst no more. ये प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बोलते हैं कि मैं उस जीवन जल को तुमको दूंगा जिसके पीने के बाद तुमको कभी प्यास नहीं In लगेगा। other words, I will be with you and you will be unmoved. वहां पर कोई ऐसे पानी का इस्तेमाल किया, आप ये ना सोचिए, वहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इसलिए तुम्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। The world will leave you high and dry and thirsty, but I will not, for I will be with you. प्रिय जीसो, ये संसार जो है वो आपको बिल्कुल खाली छोड़ देगा, आपको प्यासा छोड़ देगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहूंगा। Look at verse 5, the last line. God will help when morning dawns. यहाँ पर 5वीं आयत में आखिरी आयत में ये लिखा, 5वीं आयत में लिखा गया है, उसे कभी टलने को नहीं, जो फटते ही परमेश्वर उसकी फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता Again, करता an है। allusion to the Genesis story, chapter 1, verses 2, and it was dark, verse 3, and God said, let there be light, and there was a light. तीसरी आयत में उत्पत्ति में लिखा गया कि वहां पर अंधकार था और परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। This happens at the point of Exodus 2. और उत्पत्ति निर्गमन उसकी दूसरे अध्याय में अगर हम देखें, In the book of Exodus 2, when they are by the Red Sea. और वो लोग जब उस लाल समुद्र के पास हैं, They're followed by the Egyptian army. It's chapter 14, verses 23 to 28. I'm not going to read it for the lack of time. And the Lord, Yahweh asked Moses to stretch out his hand over the sea, the water come back over the Egyptians and the chariots and horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and sea returned to its normal course. Now listen to this. When morning appeared, and as the Egyptians fled into it, the Lord threw the Egyptians into the midst of the sea, and the waters returned and covered the chariots and horsemen, and all the hosts of the Pharaoh followed into the sea. When the morning came, deliverance was delivered. अगर आप लाल समुद्र उस घटना को अगर सोचेंगे तो कितना ही भयभीत हो गए होंगे उस समय वहां पर जो यहूदी जन है, क्योंकि वो मिस्र देश की उस फरो राजा की महान सैनिक को वो देख रहे हैं। परंतु यहाँ पर 27वीं आयत में ये लिखा गया है, इस सब के बाद जब भोर हुई, जब सुबह हुई, तो परमेश्वर ने उन सैनिकों को बिल्कुल लाल समुद्र में पानी उनके ऊपर आकर वो वहां पर खत्म हो गए। In the book of Exodus, they are not in a walled city. They are open, out in the open, vulnerable. प्रिय जीजों, जब आप लाल समुद्र की कहानी जब सुनते हैं तो आप इस बात को याद रखें कि उस समय पर वो किसी एक शहरपनाह के अंदर नहीं है, वो खुले में है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये आयत को लिखा They गया will है, not slip. तो लिखा गया कि वो कभी भी फिसलेंगे नहीं। Why? Because they are inside God. He is their bulwark. वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर उनके ऊपर है, वो परमेश्वर के अंदर समा गए हैं। God is their impenetrable refuge and strength. परमेश्वर उनका ऐसा शरण स्थान है जिसके ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता When है। you read verse 6, God is the nations rage
kingdoms totter, and he utters the voice, and the earth melts. जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई. Earth was formless and void, chapter 1, 2, and 3. And the waters were raging. The Spirit of God was hovering over the face of the water. And God said, "Let there be light." पहली से तीसरी आयत, उन आयतों को हम जब देखते हैं तो यही वो सी बात को हम देखते हैं कि संसार ये पृथ्वी जो थी वो बेडोल थी, सुनसान थी, और परमेश्वर की आत्मा उसमें मंडरा रही थी, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा और वो हो गया. Verse 7 says, if this is where you have, verse 7 says, "The Lord of hosts is with us, and God of Jacob is our fortress." सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है. He is a fortress. वो हमारा ऊंचा गढ़ है. Yahweh of armies is with us. परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारे साथ है. God of Jacob is with us. याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है. Sovereign creator God, the ruler, is with us. प्रिय जीसू, ये कोई ऐसे मामूली परमेश्वर नहीं, पर सर्वभौम सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर I want हमारे you to साथ है. observe the switch in the use of the title, the name of God, from Elohim to Yahweh. यहाँ पर अगर आप पहली आयत में एलोहीम का इस्तेमाल किया गया है, अब इस 7वीं आयत में याहवे परमेश्वर का इस्तेमाल किया गया है. That portrays to you and me the loving disposition of God's heart. और यहाँ पर परमेश्वर के उस स्नेह भरे प्रेम भरे हृदय को हम यहाँ पर देख Jesus सकते said हैं. about himself that I am lowly, gentle and lowly in heart. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं जो हूँ वो अपने मन में दीन हूँ. He loves you and wants to know you personally, my dear friend. प्रिय जीसू, परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है और आपको व्यक्तिगत रूप से जानना And चाहता if there है. is anyone seated here this morning who has not known this God personally, this is an opportunity for you to know him personally. प्रिय जीसू, अगर हम में बीच में यहाँ पर बैठे या ऑनलाइन जुड़े कोई भी हो जो परमेश्वर को इस व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, ये समय है कि आप उसको जानें. He wants to be your God. प्रिय जीसू, वो आपका परमेश्वर होना चाहता है. Don't be your God, your own God. क्योंकि अगर आप परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है तो आप आपके परमेश्वर खुद हो. Because that's dangerous and it plunges you and me into chaos. क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है कि जब आप अपने खुद के परमेश्वर बन जाते हैं, प्रभु बन जाते हैं, आप अंधकार में ही जाएंगे. One who brought the universe out of chaos into order, such a beautiful creation, wants to be your God. जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि जो बेडौल और सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था, अगर उसको इतना सुंदर सृष्टि किया है, वही परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता We है. need this divine protection, this refuge, this fortress in our lives. प्रिय जीसो, इस महान संरक्षण की सुरक्षा की जरूरत आपको और हमको अपने जीवन में With है. this word of God in my hand, I claim before you, my dear friend, there is absolutely no other God. प्रिय जीसो, इस प्रभु के वचन के सामने धर्मशास्त्र को अपने हाथ में लेकर इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसा एक और परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा. On this earth, under this earth, anywhere, there is absolutely no other God like him. इस संसार में, संसार के नीचे ऊपर कहीं पर भी आप ढूंढें, उस जैसा तो परमेश्वर हमको कहीं और नहीं मिलेगा. The psalmist says he is the personal God at a personal level, at your community level, and he's in an eternal relationship with you. यहाँ पर वो कहता है कि वो आपको एक सार्वभौम परमेश्वर है, परंतु वो एक व्यक्तिगत रूप से आपसे बातचीत करना And the चाहता है. psalmist wants us to see God as this fortress. और यहाँ पर जो भजन लिखने वाला है वो एक परमेश्वर को एक शरण स्थान या ऊंचे गढ़ के रूप में हमको सामने An रखा जाता है. epitome of stability. क्योंकि ऊंचा गढ़ जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे शहर पाना होता है, वहां पर स्थिरता के रूप में लोग उसको देखते The हैं. Hebrew construction means a high place which is inaccessible to attack of the enemy or any invading forces. जो मूल शब्द में जिस प्रकार हिंदी में भी लिखा गया ऊंचा गढ़, इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऊंचे गढ़ को कोई को जीतना जो है वो करीब करीब नामुमकिन होता So the है. enemy may rage outside, शत्रु जो है वो आसपास जरूर वो कूदेंगे फांदेंगे तो जरूर है, they may rant outside, but they cannot invade inside. वो झल्लाएंगे जरूर मगर वो अंदर आक्रमण नहीं कर सकते हैं. That is the experience of a well-reasoned faith. प्रिय जीजों, ऐसा ही होता है अगर आपका विश्वास बिल्कुल पक्का हो परमेश्वर We में. look forward for this kind of security. We all want this kind of security. ये बिल्कुल सच बात है कि आप, क्योंकि हम मानव हैं,
हम एक ऐसी सुरक्षा की खोज में हर क्षण रहते but हैं, we only find it in God. परंतु दिक्कत यह है कि जब हम ढूंढते हैं वो गलत चीजों में ढूंढते हैं। ऐसी सुरक्षा आपको सिर्फ परमेश्वर में ही मिल सकती I है। don't know, within this 1.5 years, where have you started finding your security and stability? सवाल ये आप जो हमको अपने आप से ये पूछना है कि इस 1.5 साल में हमने अपनी जीवन की सुरक्षा कौन कौन सी चीजों में ढूंढने की कोशिश करी है। When you experience such security and stability, it can't come without a sense of intimacy. प्रिय चीजों, जब आपके जीवन में ये स्थिरता और आपके जीवन में ये संरक्षण जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप उसके बाद कहीं एकांत में नहीं रह सकते हैं, आपको एक घनिष्ठ संबंध की जरूरत हो जाती You see, है। when people hire, when they feel the threat to life, when they hire their security forces or security agencies, they establish a very close relationship. These security men have access into their private lives. जब आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो वहां पर आप जब वो उनके जीवन पे कोई आंच आती है तो वो इन बॉडीगार्ड्स को हायर करते हैं। अगर आपने देखा भी होगा कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उनका जो बॉडीगार्ड के साथ उनका संबंध बड़ा घनिष्ठ होता है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, बॉडीगार्ड जो होते हैं, उनके जीवन की व्यक्तिगत कई ऐसी चीजों को जानते हैं। So when you read here between age and 11, you see intimacy written all over. क्योंकि ये परमेश्वर स्थिरता और संरक्षण को देता है। यहाँ पर हम उस घनिष्ठ संबंध को 8 और 11वीं आयतों में देख सकते Between हैं। 8 and 10, you have a futuristic anticipation. यहाँ पर 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक आप आने वाले कल के बारे में एक चित्रीकरण को देख सकते हैं। You have a creator God who is moving and is bringing all wars to end. और यहाँ पर उस एक सृष्टिकर्ता जो है वो सारे जो जंग जो है उनको खत्म कर रहा Now, है। these ending of wars are not in form of treaty and agreement and signing. He's going to break instruments of war. He's going to wage war over the invading forces of the evil one. और यहाँ पर जो जंग जो है वो कोई मेल मिलाप से खत्म होने वाली जंग नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर उनके खिलाफ एक महायुद्ध लड़ता है जिससे कि वो तहस नहस हो जाते हैं। Why would he do that? Because he wants to be exalted over his people and he wants to be placed over them in worship. वो ये महायुद्ध को क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों में ऊंचा उठाया जाए। Therefore, in verse 10 and 11, he says, "Be still." और इसलिए 10वीं आयत पर यहाँ पे लिखा गया है, चुप हो जाओ। Now, verses 10 and 11 is direct quote from Yahweh. It is him speaking, not the psalmist. यहाँ पर 10वीं और 11वीं आयत पर परमेश्वर खुद की शब्दों को यहाँ पे लिखा गया है। Be still and know I am God. शांत हो जाओ और जान लो कि I- मैं परमेश्वर हूँ, I will be exalted among the मैं nations. जातियों में महान हूँ। God directly speaks and tells us to be still. प्रिय अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। Now, to understand what that means, अगर आपको इस बात को समझना है तो इसका उदाहरण अगर दूं, no, this is not God putting his arms around you and saying, "Be still, brother. You know, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा." Be still here is a force of a command. Be still. यहाँ It's पर like me telling Nivi, "Don't do that." यहाँ पर परमेश्वर जो है वो आपके गले में ऐसे हाथ डालकर ये नहीं कह रहा है कि भाई साहब थोड़ा सा कम बोल लो, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर जो है एक आपको एक जोर से डांट लगा रहा है, कह रहा है चुप हो जाओ। Between 7 and between 11, you have 2 times usage of Jacob. God of Jacob is a fortress. Did you see that? 7वीं और 11वीं आयत में 2 बार यहोवा याकूब के परमेश्वर के बारे में बताया गया So है। to understand what be still means and to understand that it is not this mushy, good, emo feeling about, being still, just chill, man. This is not that category. This is different. यहाँ पर जो लिखा गया शांत हो जाओ, वो जो हम लोग जब ये सोचते हैं तो वो मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं कि शांति ऐसे, वो सब नहीं यहाँ पर हो। यहाँ पर याकूब के परमेश्वर का इस्तेमाल जो है, तभी आपको यहाँ पर इस बात को समझ में आएगा। Why God of Jacob? Why not God of Abraham? Why not God of Isaac? यहाँ पर याकूब का परमेश्वर क्यों बोला गया है? इसहाक का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर क्यों नहीं बोला If गया you है? take their CVs for all these 3 men, Jacob would be the worst among the Lord. Not that the others were that great either. और ऐसा अगर उनके चरित्र को देखा जाए तो यहाँ से याकूब जो है दोनों से बिल्कुल ही खत्म था। Sometime back, Ajit called Abraham a professional cheater. We'll talk about that sometime later. But Jacob was surely one. और भाई अजीत ने कुछ समय पहले
इब्राहिम को प्रोफेशनल चीटर करके बोला था, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मगर जब याकूब के बारे में हम देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही खत्म आदमी His था। name was the heel grabber. He meant he what characterized him was that he was of has a love for self. He was a man of lust. He was a cheater, and the list can go on for him. That I was coming to come to that. He's a restless man. और यहाँ पर याकूब के बारे में अगर देखा जाए तो वो अपने आप से प्रेम करने वाला, और एक तरीके से उसको अगर एक शब्द में बोला जाए तो वो हमेशा व्याकुल रहता था या बोलता बड़बड़ाते रहता था। From his birth, from the time of his birth, trying to grab the heel of his brother, he's been always on the run. उसके जन्म होने से ही वो अपने अपने भाई की एड़ी को पकड़कर बाहर निकला। उस समय से उसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज थी कि बस भागते रहो, So बस भागते when he रहो। was running with the fear of his life from his own brother, he rests at Bethel, and he's asleep, and he sees this vision of a ladder coming down from heaven. और वो अपने जान को बचाते हुए अपने भाई से भाग रहा है, तो बेथेल पर जब सोते हुए उसको एक ख्वाब आता है। But he didn't make much sense of it at that point. उस समय उस सपने से जब सपना आता है तो वो सपना देखता है, मगर उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है। Restlessness, planning, scheming to save himself, to get married to the woman he lusts after. I wouldn't even call that love. And he sends his cattle. You know, every time you just find this man scheming. He's just planning. He's just planning for himself. Even when he's in danger, he sends his women, children in front, and he stands last in order to save his life. याकूब के जीवन को अगर देखें तो बिल्कुल बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति करके आप उसको कह सकते हैं। षड्यंत्र की रचना उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही थी। बचपन से लेकर आगे जब हम उसकी कहानी पढ़ते हैं तो षड्यंत्र ही रचता जाता है। इतना ही कि जब उसको समझ में आता है कि मेरा जीवन मेरे जीवन पे आँच आ सकती है, उसने अपनी बीवी बच्चों को पहले भेज दिया कि तुम जाके उस मुश्किल का सामना करो, मर जाओ तो अच्छी बात है, मेरा जीवन बच But जाएगा। that night at the brook of Peniel, परंतु उस रात को पेनियल के उस नदी के साथ a man appeared, the angel of God, वहां पर लिखा गया है angel of Lord, Yahweh. यहोवे परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने He आता है wrestled with Jacob. और याकूब के साथ वो एक युद्ध में या एक कश्मकश में लगा To रहता the है। break of the dawn, he wrestled with Yaakov, the heel grabber. और वहां यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक भोर होते ये जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है उसके साथ युद्ध लड़ रहा है या कुश्ती कर रहा है। He wrestled with the runner. और यहाँ पर ये जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है वो एक भगोड़े के साथ कुश्ती लड़ रहा है। And he touched him at the socket of his hip. और हम देखते हैं कि उस समय पर भोर होते ये परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके जांघ पर उसकी तलवार रख दी। He couldn't run after that. और उसके बाद वो भाग नहीं पाया। Why? क्यों? Because he was renamed Israel. क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया। You know the meaning of Israel? क्या आप इजराइल का मतलब जानते हैं? शब्द का मतलब जानते हैं मूल रूप से? God fights. God contends. इजराइल शब्द का मतलब है कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, परमेश्वर आपकी तरफ आपके साथ लड़ रहा है। This was God telling Jacob, stop running, stop your restlessness. यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि आप भगोड़ा बनना बंद करो, भागना बंद करो, मेरे संरक्षण में आओ, मैं तुमको संरक्षित Stop करूंगा। in your tracks. वो कहता है जहां जितना भाग चुके हैं बंद करो, बस Be करो। still कह रहा है रुक जाओ and know that I am going to और run कहता for है you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। What you need is me, not your wishes and dreams. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जरूरत क्या है, वो मैं हूं, तुम्हें ये षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं What है। you need is not romantic relationships and the heightening of your romance with someone, but what you need is an intimate relationship with me. And I can tell you, you will find a Jacob in you and you will find a Jacob in me too. परमेश्वर कहता है जिस प्रेम की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें संसारिक संबंधों में ढूंढने की कोशिश मत करो, इस रोमांटिक ये जो संबंधों में ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो प्रेम तुम्हें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको दे सकता What are हूं। you pursuing? Your career?
क्या आज आप अपने अपने करियर के पीछे भाग your रहे हैं? job, क्या आप अपनी नौकरी के पीछे भाग your रहे हैं? family? क्या आप अपने परिवार के पीछे भाग What रहे do हैं? you pursue today? आज आप किस चीज के पीछे भाग What are रहे you हैं? restless about? आप चीज के पीछे आप व्याकुल हैं? What is stopping you from loving this God of your life? क्या कौन सी चीज जो है इस परमेश्वर को प्रेम करने से आपको रोक रही है? This God, the creator of universe, ये संसार की इस रचयिता परमेश्वर से प्रेम करने को आपको कौन सी चीज रोक रही tells you है? this morning, परमेश्वर, इस सृष्टि का परमेश्वर आपको ये कह रहा है, be still वो कह रहा है थम जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ and know I am God. और कह रहा है कि जानो कि मैं परमेश्वर हूं. Don't be God of your own life. Don't drive your own agendas. अपने जीवन के खुद प्रभु मत बनना बंद करो. अपने जीवन की चीजों को सोचना, षड्यंत्र रचना बंद करो. Because when you love God as such, He becomes your mighty fortress. जब आप परमेश्वर की इस प्रकार से प्रेम करेंगे तो वो परमेश्वर आपके लिए वो ऊंचा गढ़ बन You want जाएगा. to see Him as a mighty fortress in your life? अगर आप- Love Him more than anything else. अगर आप उसको ऊंचा गढ़ आपका शरण स्थान बनाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को सारी चीजों से ऊपरी प्रेम करें. Love Him more than the sins you enjoy. आप जिस पापों में आपको मजा आता है उसको छोड़कर Love Him more उससे than the प्रेम good करें. things in life that has been offered to you. आपके जीवन में कुछ चीजें अच्छी होंगी जो आपको मिली होंगी, परंतु आप उसमें फंस के ना रह जाएं. उस परमेश्वर Love से Him प्रेम more than करें. the worries of life that come your way. इस संसार की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे हटकर आप उससे प्रेम When करें. you love Him such, He becomes your mighty fortress. अगर जब आप उसको इस प्रकार से प्रेम करेंगे तब वो जाकर आपका ऊंचा गढ़ बनेगा. A place in which cannot be invaded. एक ऐसा जगह, एक ऐसी शहर पना जिस पर शत्रु When आक्रमण it नहीं is कर सकते raging हैं. outside, my dear church, feel His arms around you. प्रिय चीजों, जब इस सारे संसार में हमारे चारों तरफ बर्बादी और ये जंग छिड़ा हुआ है, आप उसकी तरफ This देखें. security of God cannot be experienced without the intimacy with God. प्रिय चीजों, ये जो परमेश्वर की जो सुरक्षा जो है, आप जब तक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बांधेंगे तब तक उस सुरक्षा को आप महसूस नहीं कर Your सकते हैं. security is as good as your trust in the strength of the security. You must trust the security. You must be intimate with your security. You must be in an intimate relationship with this God. जब आप इस परमेश्वर के साथ तभी आप बन सकते हैं, जब आप उस पर विश्वास करेंगे तभी आप जाके उस सुरक्षा के For- उस भावना को महसूस कर For सकते हैं. He is God with us. क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमारे साथ है. And to be a God with us, और हमारे साथ परमेश्वर हमारे बीच में है, इसको होने के लिए, इसको सच्चाई बनाने के लिए. our Lord Jesus Christ went outside the city, प्रिय चीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो शहर के बाहर चला गया leaving us inside the जिससे city. कि हम शहर में सुरक्षित हो सकें. He had no refuge. उसके पास कोई शरण स्थान नहीं He था. had no strength. उसके पास कोई बल और सामर्थ नहीं He था. had no help in the time of trouble. उसके समय उस क्रूशीकरण के समय पर उसके पास कोई सहायता नहीं He थी. did not have the mighty fortress. उसके पास उस समय पर ऊंचा गढ़ नहीं था. He didn't have river by his side. He उस- did not have a drop of water when उस- he was thirsty. जब वो प्यासा था, वहां पर कोई नदी नहीं बह रही थी, कोई पानी नहीं था जिससे कि उसका दिल प्रसन्न हो जाए. His cry was, my God, why have you forsaken me? परंतु उस समय पर वो चीख के साथ रोते रोते इस बात को कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है. He was forsaken, abandoned, exposed, brutal violence. People raged around him. और लोगों ने उसको ताड़ना दी, उसको पीड़ित किया, उसको मारा पीटा. All this to bring security, stability, intimacy into our lives. प्रभु यीशु मसीह ने by ये सब this covenant-making God. प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ इसलिए सहा जिससे कि हमारे जीवन में वो सुरक्षा स्थिर था और वो घनिष्ठ संबंध वो बना पाए, परमेश्वर के साथ बन पाए. You see, once he was abandoned, प्रिय चीजों, इस बात को याद रखें, एक बार उसको तिरस्कार कर दिया गया था. please don't abandon him again. आप उसको फिर से तिरस्कार ना करें. Please, in your choices, in your walk, in your choices, please don't abandon him, because you are making yourself go vulnerable. You will find yourself outside the mighty fortress
of your life. प्रिय चीजों, जब अपने विकल्प को आप लेते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को फिर से ना छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आप उस गढ़ से बाहर चले जाएंगे, आप असुरक्षित हो जाएंगे। Be still and know He is God. Thank परमेश्वर you. कहता है कि चुप हो जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। अब एजी अंकल हमको confessional prayer में he will lead us in the confessional prayer. I'll request Brother AG to come over. आइए जो सुना हुआ वचन को ध्यान करते हुए हमें क्या इस पिछले 1.5 साल में क्या स्थिति है हमारा, प्रभु का वचन अभी जो हमारा पास आया और उसका जो उस लाइट में हम कैसा अपन आपको देख रहा है, क्या पवित्र आत्मा आपका दिल में काम कर रहा, क्या यीशु का प्रेम जो है जो सिटी का बाहर लेकर जेकर जाया हमारे लिए, जो उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, उस प्रेम की याद करते हुए हम आज का जो कन्फेशन प्रेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका वचन के लिए। प्रभु जी आप हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारा सिक्योरिटी है प्रभु जी। परंतु प्रभु जी हम हमारा सिक्योरिटी प्रभु जी हमारा आप में देखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रभु जी कभी कभी सिक्योरिटी आपको मानते हैं, फिर भी प्रभु जी हमारा दिल में प्रभु जी दूसरों को प्रभु जी हम ज़्यादा महत्वपूर्ण देते। जैसा याकूब ने प्रभु जी जानता है आपने अब्राहम को बुलाया, इसहाक को बुलाया और उनको भी आशीष देगा, फिर भी प्रभु जी अपना आप कोशिश किया, खुद परिवार को, भैया को, साथ जो रहता था उसको चीट किया, दूर भागा प्रभु जी। और प्रभु जी वो रेस्टलेस था प्रभु जी, इतना रेस्टलेस था प्रभु जी, उस रेस्टलेस में उसका परिवार को भी वो प्रभु जी आगे भेजा ताकि वो लोग मर जाए तो भी चलेगा। परंतु प्रभु जी तू प्रेमी है, दयालु है, हमारा रेस्टलेस को प्रभु जी, हमारा जो आपसे दूर भागना प्रभु जी, वो प्रभु जी आपने आपका प्रेम से प्रभु जी हमारा पास आया, हमें प्रेम किया प्रभु जी, हमें वापस बुलाया प्रभु जी, आपका उपस्थिति में लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें इस समय प्रभु जी एक और बार हमारा जो शॉर्ट कमिंग्स हो, हमारा पाप को मानते हैं प्रभु जी, हमें माफ़ कीजिए। यीशु मसीह का उस प्रभु जी इस क्रूस पर बहा हुआ लहू से हमें प्रभु जी एक और बार धो दिए प्रभु जी। प्रभु जी हम मिलकर साथ में कह सके हमारा जो CBF का कलीसिया का जो प्रभु जो एलोहिम परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर भी हमारा परमेश्वर है, हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। हम प्रभु जी हम उस स्टिलनेस को, उस रेस्ट को प्रभु जी हम आप में पा सके, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। आज जो वचन सुना है प्रभु जी, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका प्रार्थना सुनिए, हमारा प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, हमें माफ़ कीजिए प्रभु जी। आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
आप प्रभु जी दीनों का प्रार्थना सुनने वाला है। प्रभु जी दीन में जो टूटा हो प्रभु जी दिलों को आप देखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी समय CBF कलिसिया प्रभु जी हमारा आपको दीन करते हुए प्रभु जी आपको उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमें ऊपर रखिए, हमें प्रभु जी उस शांति जो आप से हमें मिलता है प्रभु जी हमें दीजिए। तू हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, महान परमेश्वर है प्रभु जी। पृथ्वी कितना ऊपर उठे अपना ऊपर गिर जाए प्रभु जी हमें डर नहीं था, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस आशा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह में जिस उस महिमामय आशा हमें दिया है प्रभु जी, इस प्रभु जी इस कष्टों से, इस दुखों से, इस परेशानों से हम एक दिन छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, वो हमारा प्रभु जीवित है प्रभु जी। उस सुंदर आशा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, AJ Uncle. I'll have Brother Joe come over and he will lead the church in the Lord's table. And as the people who are online, we wish that we can also join at some point of time. But I'll have Brother Joe listening to the word that we heard this morning. I'll request Brother Joe to lead the church at the time of Lord's Prayer. Thank you, Ashish. Mighty bulwark is our Lord. I think we were thinking of singing that song, but today we may not sing. There's another Hindi song that is being planned. But mighty God, we heard, and mighty message at that has come to us. सबसे पहले वाला जो फिजिकल गैदरिंग है उसमें बहुत माइटी मैसेज आया है कि अपना प्रभु जो है अगर हमारे साथ है तो नथिंग विल मूव अस। वो पूरा साम्स में जो है ना वो मूव शब्द है जो वहाँ पे सीधा सेंटर में है और बहुत जगह आ रहा है। और वो तो माउंटेन सब कुछ जो कुछ भी हिल जाता है पर मूव वी विल नॉट मूव। सो गॉड इज़ देयर विथ अस। जब हम टेक पार्ट करने वाले हैं ये एम्बलम से, तो इसका हमें स्थिर रखने के लिए एक जगह पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए हमारा प्रभु ने अपना स्थान छोड़ के इस धरती पे आया। और उसका एक फिजिकल रिमाइंडर हमारे लिए सामने है। ये ब्रेड है जो उनका बॉडी, कप है जो उनका ब्लड है। दोनों ये दिखाता है कि प्रभु हर हद तक जाएगा हमें उनके पास वापस लेके आने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या हम हर हद तक जाएगा प्रभु को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देने के लिए? हमेशा वही क्वेश्चन आता है। पर जब हम ये टेक पार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन वाले मेरे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें एक मौका मिले कि हम लोग सब साथ में, पर वो सब प्रभु का होप है जो अटल है। वो ऐसा नहीं है कि कभी होगा, बट प्रभु लेके आएगा और सब चीज़ लेके। देखो आज जब लेके आए हमें ये बहुत ही क्विक हमको ये एक मौका मिला, तो ऐसे प्रभु का प्लान है। हम लोग बस इसका करने वाले हैं जो प्रभु जैसे हमें डायरेक्ट करता है। सो लेट्स टेक पार्ट ऑफ द ब्रेड, वील जस्ट प्रे and then we'll take part of the bread and then after that from the cup. Father, we thank you, Lord, for this day. You have brought us together. And the price you paid to bring us together is the most ever that we actually cannot imagine, because you came down. Lord, you took the form of the one you created. Not just to die, but also to live with us, to show us. You are such an enduring God, Father Lord.
You talk about your heart, meek and lowly heart. You identify with each one of us. हमारे सारे हर जनों का हृदय के साथ आप आइडेंटिफाई करता है प्रभु. Father, in our heart there are many thoughts today, but we pray that we can let it go and आपके ऊपर स्थिरता पाए प्रभु, क्योंकि आप है इसीलिए सब कुछ ठीक है और हम आपके ऊपर रहने पाए प्रभु. आपका जो ये जो ब्रेड जो आपका बॉडी को दिखाता है प्रभु, जब हम उसका उसका एक शेयर करते हैं अपने बीच प्रभु, आपको याद करे और हमारे जीवन में वापस आपको प्रमुख स्थान देने का एक मौका प्रभु फिजिकल रिमाइंडर हमें दे रहा है प्रभु. थैंक यू फॉर दैट. वी आस्क दिस इन जीसस नेम, आमेन. Those who have taken water baptism after having known the Lord, this is for them because they have made the proclamation to the world and you are taking part after what has happened inside. अगर आपने बपतिस्मा लिया है पानी के द्वारा प्रभु को जानने के बाद, तब हमारे लिए ये लागू होता है. तो प्लीज डू इट. जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है. वो मेरे गुनाह का है. जो क्रूस पे कुर्बान उसने क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है. जो क्रूस पे कुर्बान. इंसान है वो हर सच्चा खुदा वो है, हर सच्चा खुदा वो है. वो प्यार का दरिया, सच्चाई का रास्ता
Father, we thank you. You allowed us to take part of the bread. You allowed us to take part of the wine. More than allowance, Father Lord, you have actually made it possible. Father, you are running our lives. And every time we chose to take back control, we only mess it up. Now to remember once again to give back control into your hands, Father Lord. Like Jacob, who literally needed to be jolted. And the Lord had to come, you had to come and to literally wrestle with him, to make him stop struggling. Father, we are strugglers. Father, to let go and to find rest, trusting in you, Father. Thank you. Even as we sit for a bit more, Lord Father, just seek your grace and mercy, Lord, even to meet and to, after such a long time, Father, what joy it is. Thank you, Father. We ask in Jesus' name. Amen. आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। और अब तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो ताली जरूर बजा के इस गीत को गाएंगे, और जो भी ऑनलाइन है हमारे साथ जुड़ें और इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। ऑनलाइन जाएगा। ऑफलाइन जिनको देना है प्लीज कांटेक्ट The CDF group, there's something just like what I do. Not for the videos. And none of it share it back. You can use that for anything. One second, I'll just. आज का दिन यहोवा प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भागते रहे, जहाँ भी चाहे
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आ, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आ, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Thank you so much. Ask Brother Joe to close the Sunday worship session that we have with the word of prayer and benediction. And Joe will lead this session, I think, with the band reading also.